ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕਾਇਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਲਾਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਲੀਲ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਸ ਫਾਰ ਬਜਟ ਔਰ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਪ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਪਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2/3 ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, 2/3 ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, 2/3 ਅਗਰ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦਲਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਹਿਮਦੀਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਹਿਮਦੀਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, MNA ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਭਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮਿਸਿੰਗ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਰੀਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤਗਫਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਦਜਲ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ, इतनी ज्यादा शतमीयत है इस कादियानियत विच। और मैं तुहानू दसां पई जिहड़ा सी ना अटैम्प्ट यही सी कि 2/3 अगर ना मिले तो असी इस विचों गल विचों निकल जाओ। मिर्जा नासिर नूं उत्थे आण के केस पेश करन दा मौका देण दा मकसद ही असल है सी कि कुछ ना कुछ, और ये ब्रीफ केस चुके ये सारे मैंबरां कोल गए ने, इन्हां 30-40 मैंबर खरीदण दी उसले कोशिश की है कि साडे खिलाफ ये फैसला ना होवे और जिहड़ा काफर वाला कम अज कम एक जिहड़ा गैर मुस्लिम वाला ना ये विचों शिक निकल जाए, और ये नाकाम होए ने। बहरहाल चंदा सिस्टर्स वेलकम, पीर साहब वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਜੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੱਟੋ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ
critical analysis by Pakistan Institute of Peace Studies. ਉਹ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਤਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਬਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੀਏ ਕਿ ਅਗਰ 30-40 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈ, ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਹ ਦਜਲ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। सलाम अलैकुम। आमिर रजी साहब आप हैं? वालेकुम अस्सलाम। सब मौजूद हैं पीर अस्कानी, आप बात करें। आमिर साहब नहीं है शायद, उनसे सवाल है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि नईम अवान साहब आप ऊपर आए, भाई कॉल डालें उनको, और पंजाबी में ये कि सुना कोई दहशतगर्दी शुरू कर दी है नईम अमान ने, चुक ले उनको, चुक ले क्या अपने फौजी मारने शुरू कर दिए हैं? उनको, चुक लो भाई, मॉडरेटर जो है वो वही चुकेगा ना भाई चुक ले अली साहब, उनको चुक ले। आमिर नजीर साहब अगर आप मौजूद हैं तो आप बताइए, एक सवाल है आपसे। कॉल डाली हुई है तो नहीं आ रहे ना, कॉल डाली हुई है। अवान साहब ऊपर आइए, अवान साहब ऊपर आइए भाई, जज़ाकल्लाह। अवान साहब आईडी आई है, ये चेक कर लेना, इससे बात कर रही है कोई आईडी आई है, पता नहीं किसकी नहीं, है। अवान साहब आप ऊपर आइए ना भाई। अच्छा भाई, ये मुझे जो मैं गुफ्तगू चल रही है आधी पंजाबी में है, आधी उर्दू में है, मिक्सअप है, लेकिन जो जहां तक मैं समझा हूँ, मुझे वो सख्त जो सवाल आया था वो ये है कि आमिर नजीर साहब ये कह रहे थे कि वहां कोई मुसलमान हुआ नहीं हुआ ये छोड़ो, इसमें क्या लॉजिक है, इसको क्यों छोड़े हैं? जहां तक मेरा ख्याल है, जब इनका दावा है ये अहमदियों का कि उस कार्रवाई को अगर शाये किया जाए तो पूरा पाकिस्तान के साथ साथ फिर ईरान, चलते चलते पूरी दुनिया जो है वो अहमदी हो जाएगा। वो कहते हैं कि कार्रवाई डाली नहीं गई, इसलिए लोग जो है अंधेरे में है। अब ये बड़ा लॉजिक जवाब है उनका कि भाई ये बात ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं, वहां तो 300-400 लोग मौजूद थे, उनमें से एक जो है वो सबने वो कार्रवाई देख लिया, तो उनमें से एक तो कम से कम अहमदी होना चाहिए। तो ये जो तुम लोगों का बातिल इस्तदलाल है, यहीं से मिलियामेट हो जाता है मेरे ख्याल में, इसमें तो लॉजिक है इस बात में। लेकिन हो सकता है आमिर नजीर साहब के जहन में कुछ और हो जिसको हम नहीं समझे हो, तो मैं उसकी वजाहत चाहता था कि क्यों ना कहा जाए। जी नईम साहब आप आएंगे नहीं क्या? चलिए ठीक है भाई, आना जी नहीं। पीर साहब, मैंने असल में यही सवाल रखा था कादियानियों के सामने। जी अच्छा, क्या अमर जो भाई पीर कह रहे अस्कानी थे भाई कि जी जी मोहतरम आमिर नजीर साहब, ये देखें, मेरा जो सवाल है ना, आप लोगों की गुफ्तगू में आधी समझा हूँ आधी नहीं समझा हूँ। जाहिर बात है आपके जहन में कोई बात होगा जिससे आप मना कर रहे हैं इस सवाल के हाँ, जवाब को। मैं बताता हूँ ये- क्यों मना कर, मैं सुन लिया सवाल आपका। हाँ बस ठीक है, बताइए, जरा लॉजिक बताइए।
लॉजिक ये है कि सवाल वो करना चाहिए जिसका जवाब मुखालिफ के पास ना हो, जिसका पंचर भी ना लग सके, मजबूत सवाल करना चाहिए। इन्होंने ये कहा राजा साहब ने कि एक बंदा भी वहां पर आपके दलाइल सुनकर कादियानी नहीं हुआ। हुसैनी साहब ने जवाबन ये कहा कि एक बंदा भी कादियानी नहीं हुआ और एक भी बंदा इनके दलाइल सुनकर मुसलमान नहीं हुआ उस वफद में से जो इनका वफद आया था। ठीक है, राजा साहब ने कहा उनके वफद की तो तादाद 4-5 थी और यहाँ पर तो 300 बंदा थे, लेकिन वो बड़े खुश हो रहे थे मिर्जाई, वो जो 3-4 उधर बैठे हुए थे ना, वो बड़े खुश हो रहे थे। जिनको शलवार का शक पड़ा हुआ था, जो कह रहा था ना शलवारें, उसको मैं अगर ऊपर होता तो मैं उसको बताता शलवारें बेटा सूंघने की जरूरत पड़ जाती है कभी के, आपके मिर्जा साहब शलवारें सूंघते नहीं रहे, ये कौन सी बड़ी बात है। बहरहाल तो वो बड़े खुश हो रहे थे, वो कह रहे थे सैनी साहब आपने मुल पा दिता है, सैनी साहब मैं तो फुल मारना सी, तुसा बड़ा कमाल कर दिता। ये कहकर कि कोई बंदा कादियानी भी नहीं हुआ, कोई बंदा मुसलमान भी नहीं हुआ। जवाबन उसने ये इल्जामी जवाब दिया सैनी साहब ने। लेकिन अगर आप ये कह देते कि भाई सवाल ये है कि किसी एक ने भी आपके इस बिल की मुखालफत नहीं की, आपके खिलाफ बिल पास हुआ, किसी एक मेंबर ने भी नहीं कहा कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, भाई इतने काफी है। इसका क्या जवाब है? एक भी बंदा आज के मैं दर्जन मिसालें दे सकता हूं। ये जो लड़के इनके गुम हुए केपी के वालों के, वो कहते हैं हमारे अहमद मीर ही नहीं मान, बलोचिस्तान के वो मिसिंग पीपल, ये हालांकि जर्नलिस्ट है, कौमी असेंबली के अंदर एमएनए खड़े हो जाते हैं, मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं, और क्यों जुल्म करते हैं उधर जाके, क्यों ज्यादती करते, रोज उनको जवाब देना पड़ता है आके आर्मी वालों को और एजेंसियों को कि इनके बंदे किधर गए, क्या हुआ, किसने मारा, क्यों मारा। जुल्म ना करो, जुल्म ना करो, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इनको एक बंदे ने भी नहीं कहा इनके साथ ज्यादती ना हो, ज्यादती नहीं है, सब ने कहा ये आस्तीन के सांप है, इनसे जान छुड़ाओ। खत्म हो गया मेरा जवाब। बहुत आला, सही बात है, बिल्कुल इसका जवाब नहीं है और उसका जवाब है, बिल्कुल ये बात सही है। वही मैं समझ नहीं रहा था कि इसकी क्या लॉजिक है। बात दुरुस्त है, हालांकि ये लोग जो होते हैं ये उन पार्टियों के या उन लोगों का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो देखते हैं, वो कहते हैं भाई क्यों जुल्म कर रहे हो, जवाब दो, और तुम लोग को ये नहीं कर लेना चाहिए। बायन ही जो कुछ वहां पर थे, तो अगर ये गलत होते तो कहते भाई आप लोग क्यों ये ज्यादती कर रहे हो। तो किसी एक ने इनके हक में कोई गुफ्तगू नहीं की, तो इसका जवाब उनके पास नहीं है। बिल्कुल इसमें लॉजिक है। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। और दूसरी बात है, ये कार्रवाई की जो गुफ्तगू होती है ना, हम लोग को लेने की कोई जरूरत नहीं। बार बार डाल रहे हैं अली साहब, वो लोग यहाँ पर आए ताकि वो उनकी गुफ्तगू से हम मुस्तफीद हों, हमें तो इनको मालूम ही नहीं ना। हाँ, आप कहेंगे सवाल जवाब कभी उठा लिया, ठीक है, खामखा एक सीट बंद किया हुआ है मैंने, अब मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है, सुनूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा ना भाई। अली साहब, जब मैं नहीं आ रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इसको सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो इस बात का भी मेरे ख्याल में ख्याल रखें। जो भी हमारे साथी इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं कर सकते तो उनको सुनना चाहिए कि क्या है। हाँ, उनके जहन में कोई सवाल है नीचे लिख दे, उनको बुलाया जाए और वो अपनी बात करे, सवाल करे, ताकि बात वजाहत हो। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पीर अस्कानी साहब को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ये कार्रवाई हुई थी तो उम्मत मुस्लिमा ने अपना मौक़िफ़ नहीं रखा था सामने, सिर्फ कादियानियों ने अपने अकायद बयान किए और क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, उसके जवाब में मुसलमानों का मौक़िफ़ रखा ही नहीं था गया। जब मुसलमानों का मौक़िफ़ रखा ही नहीं गया और सिर्फ कादियानियों के अकायद पर बात हुई, तो ये कौन कैसे कह सकता है कि सुनने वालों में से कोई भी मुसलमान नहीं हुआ। बल्कि हुआ ऐसा कि वहां पर 2 या 3 कादियानी एमएनए थे। 21 अगस्त को उन्होंने 1974 में असेंबली में खड़े होकर मिर्जा नासिर के सामने कहा कि तुम झूठे और कज्जाब हो, और उन्हें कलमा पढ़ाने वाले मौलाना मुफ्ती महमूद थे। आपको ये नहीं बताया इन्होंने? डॉक्टर साहब, असल में ये बात जो आपने, मैंने जानबूझकर ये बात नहीं की उनके सामने, वो इसलिए कि उन बंदों के नाम मुझे नहीं पता थे। उनके नाम 1974
टॉपिक लिस्ट में लिखे हैं, मैं आपको बता दूंगा दोबारा देख कर। जी वो लिस्ट मेरे पास है, मैं मैं आपको पर्सनल अगर वो ये लिस्ट भेजूंगा। एक मिनट ठहर जा राजा साहब, अगर 21 अगस्त की कार्रवाई में ये वाकया हुआ है ना, तो वो अगर महफूज है, कार्रवाई का हिस्सा है, नहीं, वो कार्रवाई तो का अभी मैं हिस्सा थोड़ी देर वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं, कार्रवाई का हिस्सा सिर्फ वो सवाल और जवाब हैं या इंटरम डिस्कशन रेलेवेंट टू दैट सेशन है। उसके बाद असेंबली के एक प्राइवेट सेशन होता था जिसमें वो अपने मामलात की बात करते थे। तो सिर्फ दो चीजें आपको असेंबली की कार्रवाई में मिलेंगी, एक इंटरम सेशन, इन्हें बुलाने से पहले इनके बारे में जो कमेटी बात करती थी वो मिलेगी डॉक्यूमेंटेड, फिर इनसे जो बात होती थी वो हरफ बरफ मिलेगी, लेकिन उनका वो सेशन जिसका ताल्लुक इनसे नहीं था वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम पीर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जी, ये जो बात आपने अभी आपने जो बात की, इसका जवाब तो मेरे ख्याल में आमिर नजीर साहब देंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरा सवाल ये है आपसे कि ये मसला क्यों बना, क्यों इनको बुलाया गया? उन्होंने खुद कहा कि हम आएंगे, बात करेंगे, या कोई वजह बनी थी वजह उनको बनी, बुलाया गया? मैं क्या वजह आपको थी वो? बता देता हूँ वजह क्या बनी। वजह ये बनी थी कि ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया दो मर्तबा हुआ है। पहली मर्तबा 1952 में ये वाकया हुआ और उस वक़्त इनके मिलिट्री में 70% जनरल्स इनके थे और इन्होंने अयूब खान का एक चेहरा सामने लगाया हुआ था और पीछे से वो डोर पकड़े हुए थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 1953 में मौलाना मौदूदी ने जब ये चली ख़त्म नबूवत की मुहिम, तो 20,000 लाहौर के शहरियों को फौज ने मुहासरा करके शहीद कर दिया कादियानी जर्नैलों के कहने पर। और इनका ब्यूरोक्रेसी में इतना ज़्यादा असर था और इनके इतने ज़्यादा लोग थे कि एक दुनिया खामोश हो गई। जलियांवाला बाग में 300 लोग भी नहीं मारे गए थे, आज तक इंडिया नहीं बोला। मैं पूछता हूं पाकिस्तानियों से, तुम 2000 शहादतों को कैसे भूल गए हो? ये खत्म नबूवत के साथ इन्होंने 1953 में किया। इसके बाद लोगों ने कह कलाकर मेरे वालिद सऊदी हुक्मरान से मिले और उन्हें कहा कि मौदूदी साहब की फांसी को ख़त्म किया जाए, और वो उस वक़्त पाकिस्तान के सफ़ीर थे और वो ख़ास तौर पर सऊदी अरब गए। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये इतनी मुस्तनिद है जिसका हिसाब नहीं है। इसके बाद चूंकि इतनी शहादतें हुई, इन लानती मर्जी कादियानियों की तादाद इतनी नहीं है लेकिन इनकी होल्ड बहुत ज्यादा थी। और उसका मैं आपको मिसाल रिसेंट ईयर्स में देता हूं कि मुशर्रफ कादियानी खानदान से ताल्लुक रखता है। इमरान खान की माँ शौकत खानम का नाना मुंशी गोहर अली मिर्जा कादियानी की हर फोटो में उसके पीछे खड़ा है। ये सुने मेरी बात को गौर से। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF के कहने पर कादियानी को लगाया गया। हमारी फौजों का सिपा सलार जो पिछला रिटायर हुआ है उसका पूरा खानदान कादियानी और वो खुद भी कादियानी है, कहता है कि मैं नहीं। ये बैकग्राउंड अगर आप याद रखें तो आपको पता लग जाएगा कि कादियानियत नंबर के लिहाज से कुछ नहीं है, लेकिन सांप है एक जहर का, जिसका जहर बहुत सख्त है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी बैकग्राउंड 1974 में क्या हुई। आप गौर से सुने इस बात को। लोग आपको शायद तारीख में मैं आपको हवाले भी दे सकता हूं। जुल्फकार अली भुट्टो को 1970 में कादियानियों ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपया दिया इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, ताकि एक पपेट सियासी गवर्नमेंट बनाई जा सके। क्योंकि पाकिस्तान का एक ऐसा सेक्शन था जो मार्शल से तंग आ चुका था। भुट्टो ने एक मुहिम चलाई थी, उसके नतीजे में अयूब खान जा चुका था, याहिया खान आया हुआ था, और कादियानियों ने सोचा कि अब तो ये सिविल जो कैंपेन लगी हुई है मार्शल के खिलाफ उसको काबू करना मुश्किल है। तो उन्होंने भुट्टो को साथ इसको पैसे दिए, 2 करोड़ से ज्यादा रुपया। इंतहा ये थी कि पूरी कादियानी जमात में
5 रुपए 10 रुपए और इस तरह की नोटों की शक्ल की रसीदें छपवा कर तकसीम की जाती थी और उन्हें कहा था ये खरीदो ताकि हम भुट्टो की मदद करें, वो गवर्नमेंट में आए। बदकिस्मती ये हुई कि जुल्फकार अली भुट्टो मुजीबुर रहमान से हार गया। होना तो ये चाहिए था कि मुजीबुर रहमान को गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाता, क्योंकि ये कंबाइंड पाकिस्तान था, उस वक्त बांग्लादेश नहीं था। कादियानियों ने भुट्टो को मशवरा दिया कि देखो, अगर तुमने एक मर्तबा बंगालियों को पाकिस्तान की हुकूमत दे दी तो तुम्हारे कब्जे में कुछ नहीं आने वाला और तुम्हारा दोबारा जीतने का चांस कोई नहीं है। इस दफा तो हमने सपोर्ट किया, वो आके अपनी होल्ड कर लेंगे, हमेशा के लिए उनकी हुकूमत हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बयानिया था। डेमोक्रेसी का तकाजा था कि भुट्टो पीछे हट जाता और मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का सदर बनता। कादियानियों की बड़ी शदीद होल्ड थी उस वक्त तक भी आर्मी पर। जनरल नियाजी इनका अपना खास आदमी था। उन्होंने भुट्टो को कहा, तुम इसको कहो तुम ईस्ट पाकिस्तान में हुकूमत बनाओ, हम वेस्ट में बनाएंगे। हमारी फौज के 2 बड़े हिस्से थे, इसलिए अयूब खान अपने आप को फील्ड मार्शल कहता था। हमारी 2 आर्मी थी। ईस्टर्न कमांड नियाजी के पास थी। मिर्ज़इयों ने साजिश करके ईस्ट पाकिस्तान को सरेंडर करवा दिया। आप अगर तारीख देखें, नियाजी हरामजादे ने एक गोली नहीं चलाई, सरेंडर कर दिया। दुनिया की 3री बड़ी आर्मी को सरेंडर किया उसने। ये कादियानियों की साजिश के नतीजा में हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। इसके बाद भुट्टो की जो ट्रांसफर हुई गवर्नमेंट की, अब देखें सारी मार्शल कादियानी उसके पीछे हैं, हर मार्शल के पीछे। मुशर्रफ जो था लास्ट मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उसका ताया कादियानी, उसकी बीवी कादियानी, उसका भाई कादियानी। उसके भाई की शादी किससे हुई, नाम सुने मुझसे, प्रोफेसर असगर हमीद, सरबराह लाहौरी ग्रुप। उसकी बेटी अंजुम हमीद, उससे शादी हुई। मैं नाम बता रहा हूं आपको, ये आप गौर करें। ये बैकग्राउंड है पाकिस्तान में ताकत वालों की। तो भुट्टो जब था ना, अब ईस्ट पाकिस्तान सरेंडर हो गया, ये वावेला हा जी ये हो गया। हालांकि सिर्फ ये हुआ था कादियानियों की साजिश, भुट्टो की गद्दारी और जनरल नियाजी की हरामजदगी के नतीजे में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। ये उसके बाद जब भुट्टो आया तो भुट्टो को इसका बड़ा गम था और भुट्टो अपने मशीरों को, हमारी फैमिली में से 2 लोग उसके एडवाइजर थे, बड़े करीबी एडवाइजर। वो कहते हैं कि भुट्टो कहता था कि ये सब कादियानियों ने करवाया है। कहता था कि मुझे उन्होंने कहा कि तुमने हुकूमत तुमने करनी है, प्राइम मिनिस्टर तुम बनोगे। जैसे आजकल हो रहा है ना, इस तरह का कोई सूरत हाल बयान की जाती है। तो उसके बाद भुट्टो ने जब गवर्नमेंट की ट्रांसफर हुई तो सुने, ये भी आप सुने, इनको कंफर्म करें इन हकायक को। भुट्टो ने 3 मिलिट्री चीफ को उतार दिया। पाकिस्तान सरेंडर होने के बावजूद जुल्फकार अली भुट्टो ने एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ तीनों को निकाल दिया। जफर चौधरी, खुला कादियानी, हरामजादों का हरामजादा, उसको उसने एयर चीफ बना दिया। उसने एयर चीफ बनते ही 16 सीनियर अफसरों को कादियानियों को लगा दिया और 9 लोगों को जबरदस्ती सीनियर मिलिट्री एयर सर्विस के लोगों को रिटायर किया। नेवल चीफ कादियानी को लगाया, उसने भी यही हरामजदगी की। मिलिट्री चीफ उसने जनरल टिक्का खां को लगाया। तो कादियानियों ने कहा हमें मिलिट्री चीफ, आर्मी चीफ भी हमें कादियानी चाहिए। भुट्टो ने कहा हरामजादो तुम पागल हो गए हो, मैंने एयर चीफ और नेवल चीफ कादियानी लगा दिया, तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा उस वक्त पाकिस्तान की 5 कोर थी। कादियान लेफ्टिनेंट जनरल, 2 कादियानी, खुले कादियानियों को लगाया गया। बरकी खानदान का था एक, दूसरा एक छुपा हुआ था और 2 मुसलमान लगाए। आप फौज की डिस्ट्रीब्यूशन देखें। कादियानी ने इस बात को यकीनी बनाया कि अगर भुट्टो उनके खिलाफ जाएगा तो वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा देंगे। भुट्टो इस सूरत हाल से इतना तंग था कि कादियानियों के उसने एक बयान जारी किया, कादियानी चाहते हैं कि हुकूमत तो मेरी हो
हुक्म उनका चले, ये सूरत हाल। इस पर भुट्टो की अगर आप फितरत देखें तो उसने डिस्टेंस करना शुरू किया। उसे 1974 जनवरी में मशवरा दिया गया कि तू कादियानी चीफ हटा दे मिलिट्री के, नहीं तो तेरा बैंड बजा देंगे। उसने सबसे पहले कोर्ट मार्शल का हुक्म दिया जनरल नियाजी का। दूसरे नंबर पर उसने जफर चौधरी को एयर चीफ के ओहदे से अप्रैल 1976 को हटा दिया। उसने 16 मिलिट्री अफसरों के कोर्ट मार्शल का हुक्म दिया, 16 के 16 मिर्जई और कादियानी थे। इसकी वजह से मिर्जा नासिर जो था उसने सरेआम ये ऐलान किया कि हम एयर मार्शल असगर खां की पार्टी तहरीक इस्तकलाल के साथ जाएंगे और तुम्हारी बैंड पॉलिटिकली बजा देंगे। अब वो एक मौका, भुट्टो इस पर बहुत परेशान था। अगर आप उसकी तकरीरें देखें, मई, जून, जुलाई, अप्रैल से लेकर उसने 16 दफा एड्रेस किया है असेंबली को, क्योंकि उसके खिलाफ कादियानी बड़े सरगर्म हो गए। कादियानियों का तरीकाकार क्या है मैं आपको ये बताऊं। सियाचिन का जो हमला कराया कादियानी अफसरों ने किया, उनमें से 2 को आर्मी ने खुलेआम कोर्ट मार्शल करके गोली मारी थी। दोनों कादियानी थे, क्योंकि इन्होंने सियाचिन पर हमला इसलिए करवाया था ताकि नवाज शरीफ को हटा के मुशर्रफ को इंस्टॉल किया जाए। और इनके साथ और लोग भी मिले हुए हैं, लेकिन इसलिए नहीं, वो इसलिए मिले हैं कि वो एक अलग डिस्कशन है। मैं आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल हाल बता रहा हूं। 1974 में ये एक ऐसा ही मसला खड़ा करना चाहते थे कि इनको एक रीजन मिले मार्शल लॉ लगाने की भुट्टो के खिलाफ, क्योंकि भुट्टो ने इनके एयर चीफ उतार दिया, नेवल चीफ उतार दिया, कोर्ट मार्शल का हुक्म दे दिया, ये तहरीक इस्तकलाल के साथ हो गए। तो अचानक मिर्जा नासिर को पता लगा कि निश्तर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स रब्वा से गुजरेंगे। इसने अमूमी वाले जो इनका महकमा जसूसी है उसको बुलाया और कहा कि तुमने गाड़ी रोक के इतना मारना है कि मुल्क में हंगामा हो जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जनाब गाड़ी रुकनी नहीं थी चनाब नगर के स्टेशन पर जो रब्वा कहलाता था उन दिनों, उन्होंने कांटा बदल दिया, गाड़ी रुकवाई, उनको मारा। 2 डब्बे भरे हुए थे, 170 स्टूडेंट मौजूद थे उनमें, और फिर गाड़ी को उन्होंने जाने दिया। तो गए मिर्जा नासिर के पास, उन्होंने कहा और मिर्जा नासिर हमने बहुत फेंटी लगाई उनको। उसने कहा कितनों के हाथ काटे, कितनों के कान काटे, कितनों की उन्होंने कहा ना ना पाकिस्तानी ने मारेंगे, बहुत फेंटी लगाएंगे हमें। उसने कहा नहीं, दोबारा गाड़ी रोको और इस मर्तबा हाथ पांव तोड़ने हैं, कान काटने हैं, जुबानें काटनी है। अब अमूमी वाले हैरान थे, यार मिर्जा पागल हो गया है। उसने कहा मुल्क में हंगामा हो जाएगा। उसने कहा तुम्हें इससे क्या, मेरे हुक्म की पाबंदी करो। अब कादियानियों में यही है, तो उन्होंने दोबारा गाड़ी रोकी। इस मर्तबा उन्होंने गाड़ी रोक के वो जो डब्बे 2 थे वो अलग कर दिए गाड़ी से। उन्होंने हाथ भी तोड़े, पांव भी तोड़े, कान भी काटे, बेशुमार खून बहा। और सरगोदा स्टेशन पर, जो अगला स्टेशन पर गाड़ी रुकी, तो मुसलमान उलमा, असेंबली के मेंबरान सब इंतजार कर रहे थे। मिर्जों ने जानबूझ के सूरत हाल वो बनाई कि मुल्क में हंगामा खड़ा हो जाए, और हो गया हंगामा खड़ा। खत्म नबूवत की तहरीक दोबारा शुरू हो गई। और भुट्टो ने 29 मई को ये वाकया हुआ 1974 को। भुट्टो ने 3 तकरीरें की जून में, 1 जून को, 5 जून को, 13 जून को। वो हर मर्तबा यही कहता था ये पंजाब का मामला है, और पंजाब का गवर्नर हनीफ रामे था, उसका राइट हैंड था वो शख्स, लेकिन बुज़दिल बहुत था। उसने कहा हनीफ रामे को कि तुम ऐसा करो, तुम इसको सूबाई हुकूमत के अंडर हल करो। एक सेक्शन 48 है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है सेक्शन 48 के अगर सूबाई हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर सकती। अगर आप पूरी तारीख पढ़ें तो जो मेंबर थे तहरीक ख़त्म नबूवत में और नेशनल असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने स्पीकर से कह के सेक्शन 48 को सस्पेंड करवा दिया था कि हाँ अब लाओ। भुट्टो बार बार कहता था कि ये हाई कोर्ट का जज, इसका उसने बना भी दिया,
लेकिन बार बार जो थे ना उलमा कहते थे कि ये नेशनल असेंबली में आएगा। तो समझानी आखिर कमीशन भुट्टो ने अपने एडवाइजर्स की कमेटी को बुलाया। उसने कहा कि देखो ये मुल्क में और कई लोग शहीद हो गए थे उस दौरान, कादियानियों की भी बैंड बज रही थी, इनकी दुकानें जला दी। मैं कहता हूं कि सिर्फ दुकानें जलाई थी, यहां पर लाकर बुलडोजर चलाना चाहिए था चनाब नगर पर, लेकिन भुट्टो ने मिलिट्री की 3 बटालियन को चनाब नगर के गिर्द खड़ा कर दिया था। यार इनकी हालत देखें। 5th बटालियन जो थी जो पंजाब रेजिमेंट की, इनकी निगरानी पर लगी हुई थी। ये सूरत हाल पर भुट्टो बार बार कहता था कि चलो हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में। और फिर उसने असेंबली के मेंबरान को कहा कि अगर तुम ये मामला सुनोगे तो मिर्जा खानदान बच जाएगा। तुम ऐसा करो, सुप्रीम कोर्ट में अंडर सेक्शन 24 या 27 सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। अगर इन्होंने क्राइम दिया है तो इनको हम जेल में भेजेंगे। लेकिन उलमा जो थे खत्म नबूवत के, उन्होंने फैसला किया कि इसके जेल जाने से मसला हल नहीं होगा, हमें यह फैसला करना है कि क्या ये मुसलमान हैं या नहीं है। ये वो लोग थे, अगर आप जाने, और ये कौमी असेंबली में भी जेर बहस आया, जो गुरदासपुर जहां पर कादियान था, जिसके बारे में 13 अगस्त को शाम 6 बजे ऐलान हुआ था कि गुरदासपुर का जिला पाकिस्तान में शामिल होगा, कादियानियों ने अपना वोट विदड्रॉ किया। 2.5% वोट था इनका, वो इन्होंने विदड्रॉ किया, तो तब बैलेंस में जा रहा था वो डिस्ट्रिक्ट जो था। 14 अगस्त को और 15 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री रफली बता दी गई, लेकिन एक ऐलान किया गया कि गुरदासपुर का अभी फैसला होगा। 15 अगस्त को कादियानियों ने अपना वोट हिंदू के साथ कर दिया। और इसलिए मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं, मुझे रिकॉर्डिंग करो मेरी। 15 अगस्त को कादियानियों ने अपना वोट हिंदू के साथ कर दिया कि मुसलमान तो हमें काफिर कहते हैं। और 17 अगस्त सुबह 9 बजे बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन सर रेडक्लिफ, चेयरमैन तो क्या, जो इसका इंचार्ज था सर रेडक्लिफ, उसने ऐलान किया कि वोट की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सर गुरदासपुर जो है इंडिया में शामिल किया जाता है। 17 अगस्त को फैसला आया था। वो कादियानी, खुदा की लानत है इन पर, ये अपना घर दुश्मन को दे के आए जिसमें कादियान था। अगर ये अपना वोट स्विच ना करते तो कादियान पाकिस्तान में आता। इनको रबवा या चनाब नगर के नाम पर शहर दे गया था जहां पर इनकी हुक्मरानी थी, कादियान में इनकी हुक्मरानी होती। अल्लाह की लानत यह है कि वो कादियान जिस पर यह दज्जाल पैदा हुआ, उसका 8% हिस्सा भी इनके पास नहीं है आज। और सिख और खास तौर पर हिंदू इनको पीछे से डंडे मारकर निकाल देना चाहते हैं। इनकी मस्जिदें उन्होंने बंद कर दी जाने के बाद, मैं उनका नाम आपको बता सकता हूं, विकिपीडिया पर देख लें। इनके स्कूल कॉलेज उन्होंने बंद कर दिए। सिखों ने गुरु नानक कॉलेज को खास तौर पर बुला के वहां तामीर किया। मैं कहता हूं कादियान जहां से ये शुरू हुआ कुफर, वहां पर इनकी ताकत, खैर ये अलग मामला है। तो भुट्टो ने आखिर जून में 26 या 21 जून को भुट्टो इस बात पर मान गया कि ये मामला कौम, और 2 सेक्शन सस्पेंड करने, सेक्शन 48 सस्पेंड करना पड़ा, और एक और सेक्शन मुझे वो भूल रहा है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि वो सेक्शन जब सस्पेंड होते हैं तो फिर मामला फेडरल गवर्नमेंट में आता है। और उसके बाद क्या, आपका सवाल था क्या इन्हें देखें, कानून के लिहाज से अगर किसी को आप फोर्स के साथ बुलाए ना कि तूने आना ही आना है, तो उसको कहते हैं सरपीना। कादियानी जमात को कोई सरपीना इशू नहीं किया गया। भुट्टो ने इनको इस्लामाबाद बुलाया, जिसमें मिर्जा ताहिर आया, दोस्त मोहम्मद शाहिद आया, मिर्जा नासिर आया, और 2 और खबीस आए जो हेयरिंग में शामिल नहीं थे कौमी असेंबली के। भुट्टो ने इन्हें बताया कि देखो बात सुनो, मामला अब कौमी असेंबली में चलेगा और मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई, अब बहुत लोग मर चुके हैं इस मामले में, तुमने बहुत खबासत की है। उसने कहा कि मेरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मुझे बता रही है कि तुमने जानबूझकर ये मामला उठाया है। उस पर मिर्जा नासिर भड़क उठा। उसने मिर्जा नासिर को, भुट्टो ने अपने सामने पड़ी हुई किताब उठाकर ठा
फटा से मिर्ज़ा नासिर के मुंह पर मारी, क्योंकि उस मीटिंग में मेरे वालिद मौजूद थे। तो ये मामला जब हुआ तो उसने मिर्ज़ा नासिर को, भुट्टो ने कहा कि देखो बात सुनो, अगर तू मेरे ऊपर चिल्लाया दोबारा तो मैं तुझे ना सिर्फ अरेस्ट करवाऊंगा बल्कि मैं वही करूंगा जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली और सरहद की असेंबली ने किया है। तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौमी असेंबली तुम्हारी किताबें देखकर और तुम्हारे दलाइल जैसे आज़ाद कश्मीर ने फैसला दिया और सरहद ने तुम्हें काफिर करार दिया, आज़ाद कश्मीर ने काफिर करार दिया, हम फैसला कर देंगे तो तुम कौन हो। मिर्ज़ा नासिर और मिर्ज़ा ताहिर दोनों इस मीटिंग में मौजूद थे, दोनों खबीस उधर थे। वहां पर इन्होंने कहा, और वहां पर बहुत सारे भुट्टो के एडवाइजर भी मौजूद थे, बहुत सारे लोग थे और भी। उन्होंने फिर जाकर आधे घंटे का वक्त मांगा और आधा घंटा इन्होंने जो भी किया, जिससे भी फोन किए, 11 फोन इन्होंने पाकिस्तान से बाहर किए, प्रेसिडेंट हाउस में से या प्राइम मिनिस्टर हाउस में से। इन्होंने फॉरेन लोगों से एडवाइस ली उस वक्त, और वापस आकर इन्होंने कहा कि देखो हम आएंगे और इनके सवालों का जवाब देंगे, तुम हमें काफिर नहीं करार दे सकते। भुट्टो ने कहा ठीक है। और उसके बाद भुट्टो को कहीं से फोन आया, लोगों ने कहा कि किसी ने, और भुट्टो उस पर 40 मिनट तक उस फोन पर था। वापस आकर उसने इनकी टीम से कहा, इन्होंने कहा होगा किसी को भुट्टो को फोन करो। भुट्टो ने कहा कि देखो, उसकी टोन ही लोग कहते हैं बदल गई। उसने कहा देखो बात सुनो, कि बात यह है कि अगर कौमी असेंबली के 20% या उससे ज्यादा लोगों ने इधर एब्सटेन किया यानी वोट देने से इनकार किया, या तुम्हारे हक में वोट दिया, तो मैं तुम्हें काफिर करार नहीं पाने दूंगा। ये उसने उनसे वादा किया। कहता है ये मेरा तुम्हारे साथ वादा है कि 20% वोट या एब्सटेन करे या तुम्हारे हक में हो तो तुम काफिर नहीं करार पाओगे। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी ना। नहीं, उसने 2/3 के बावजूद, 2/3 तो 75% बनती है ना, उसने इनको बड़ा ग्रेट बोनस दिया। उसने कहा 2/3 मेजॉरिटी भी तुम्हें काफिर करार दे दे, मैं तुम्हें काफिर करार नहीं दूंगा। कहता है अगर तुम्हें 20% या इससे ज्यादा लोग एब्सटेन करें या तुम्हारे हक में वोट दें, तुम्हें हम काफिर करार नहीं देंगे, इस वजह से कि कंसेंसस नहीं है। फिर भुट्टो ने आकर स्पीच की। ये स्पीच क्लोज स्पीच थी असेंबली की। भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को कहा कि बात सुनो, मुल्क के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, तुम में से अगर किसी ने एब्सटेन किया या कादियानियों के हक में वोट दिया, और याद रखें 2 या 3 MNA कादियानी थे उस असेंबली में जिन्होंने इस्लाम कादियानियत से हियरिंग के दौरान इनकार कर दिया था, मुसलमान हो गए थे। उसने कहा अगर तुम में से किसी ने भी ऐसा किया तो फिर मामला मैं सुप्रीम कोर्ट में भेजूंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि क्या इसे सस्टेन करना है या नहीं सस्टेन करना। और उसने उन्हें बताया कि अगर तुम्हारा फैसला वैसा ही हुआ जैसा आज़ाद कश्मीर की असेंबली का 100% वोट कादियानियत के खिलाफ था और सरहद का 100% वोट कादियानियत के खिलाफ था, अगर तुम्हारा 100% वोट कादियानियों के खिलाफ हुआ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन 161-762 में फौरन तब्दीली कर दूंगा, इनको काफिर करार दे दूंगा नाम लेकर। कादियानियों के दिल में था, उनके 2 या 3 MNA तो मौजूद हैं, 100% हो ही नहीं सकता। और उनके एक MNA ने उन्हें कहा था भाई साहब हम तो ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एब्सटेन कर लेंगे, तुम्हारे खिलाफ वोट नहीं देंगे। फिर उन्होंने सोचा कि 2-4 तो हमारे पास और आ जाएंगे, तो इन्हें उन्होंने इनविटेशन दी जो सरपीना नहीं था, कोई फोर्स नहीं थी। इन्होंने कहा जी हम आएंगे। जब इन्होंने आने का कहा तो सदरुद्दीन ने भी जवाब दिया, जो लाहौरी जमात का सरबराह था, वो बड़ा बूढ़ा शख्स था, उसके बिहाफ पर अब्दुल मनान उमर ने बात की थी, उसने कहा कि हम भी आ जाएंगे। चूंकि इनकी तादाद ज्यादा थी, इनको 10 दिन का वक्त दिया गया और लाहौरियों को 2 या 3 रोज का वक्त दिया गया। तो ये अपनी मर्जी से आए थे। अगर आप कार्रवाई पढ़ें
تو اس کو پڑھ کر میں کہتا ہوں کہ جو سب سے تھک دماغ کا آدمی ہے نا وہ بھی جان جاتا ہے قادیانیت کفر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. قادیانیت وہ کفر ہے جو ایک انتہائی گھٹیا بنیاد پر کھڑا ہے، جس کی کوئی، بلکہ جب لاہوریوں کی شروع ہوئی نا کراس کویشچننگ تو انہوں نے ایک معاملہ اٹھایا. انہوں نے کہا قادیانی، ان سے پوچھا گیا بھئی قادیانی کیوں جھوٹے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو ان کا خلیفہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو مرزا قادیانی کے حکم کے خلاف ہے. انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کارمائی میں، انہوں نے کہا جی 1905 میں تو اس نے ایک انجمن بنائی تھی جس کے 14 ممبر تھے، مرزا قادیانی کی انہوں نے نکال کر وصیت کی اصلی کاپی آگے رکھ دی. انہوں نے کہ یہ پڑھ کے دیکھو، مرزا قادیانی لکھ گیا ہے کہ اس کی زندگی کے بعد جو بھی میجورٹی ڈیسیژن ہوگا وہ انجمن کرے گی، کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا صدر اس نے حکیم نورے کو بنا دیا، یہ جو نور الدین تھا ان کا، جسے پہلا خلیفہ کہتے ہیں. میں قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ حکیم نور کو کسی نے خلیفہ نہیں بنایا، اس کو مرزا غلام قادیانی نے صدر انجمن بنایا تھا جس کے 14 ممبر تھے، اور اس کو یہ حق بھی نہیں دیا تھا کہ وہ اکیلا فیصلہ کرے یا خلافت کے دعوے کرتا پھرے. مرزا حکیم نورے کا کبھی خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوا، اس کو خلیفہ کہنا انہوں نے اس کے مرنے کے بعد شروع کیا تھا. اس کو بعد میں انہوں نے خلیفہ اول اس لیے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے کہا لو جی یہ جو آ گیا ہے نا دوسرا محمود، یہ اب خلیفہ ہوگا، اور اس نے اپریل 1914 کو انجمن بالکل ختم کر دی. اس نے کہا اس نام کی انجمن موجود ہی نہیں ہے اور خلیفے کا فیصلہ آخری خلیفہ ہوگا. جب وہ مرنے والا ہو رہا تھا، اس کے آخری دن آ رہے تھے، آخری 10 سال میں، لوگوں نے کہا تیرے بعد پھر یہ انجمن بنا لیں گے لاہوری اور بڑی گڑبڑ ہوگی، اور لاہوری بڑی طاقت میں تھے. تو اس نے ایک دعویٰ کر دیا کہ میں ہوں مسلم عود، میں وہی زکی غلام ہوں جو مرزا کہہ کے گیا تھا کہ تیری ذریت سے ہوگا. اور انہوں نے اس کو کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے نعوذ باللہ خدا نے بتایا ہے کہ یہ خلافت ہی چلے گی. آپ سوچیں کہ یہ تو قادیانی کافروں کے درمیان بھی ایک تضاد ہے اتنا بڑا. اس کو ایسی باتیں سننے کے بعد، اور پھر ایک چھوٹی سی اور اگزامپل دیتا ہوں. مرزا ناصر سے انہوں نے کہا بھائی تمہاری کتنی تعداد؟ کہتا پتہ ہی کوئی نہیں جی. انہوں نے کہا یار کچھ تو تمہیں پتا ہونا. نہیں جی میرے پاس کوئی ریکارڈ تو ہوگا، ہے ہی کوئی نہیں. حالانکہ ان کے پاس رجسٹر تھا، ان کے پاس بیت کے فارم تھے، پلندے بھرے ہوئے تھے، انہیں ایک ایک بچے کا پتا تھا جو ان کا ممبر تھا. کیوں نہیں بتاتے تھے؟ کیونکہ یہ تعداد کو 50 گنا 100 گنا بڑھا کر بتاتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے بتا دی کہ ہمارے پاس ثبوت تو یہ ہے کہ ہماری تعداد 2-2.5 لاکھ کے قریب ہے پوری دنیا میں، تو ہماری تو بینڈ بج جائے گی، کیونکہ ہم تو انہیں کہتے ہیں پاکستان میں ہم 35 سے 40 لاکھ ہیں. پھر اس نے بار بار پوچھا، اور اس نے انٹرنیشنل ریکارڈنگ جو ہوئی ہے ان کی اور سینسس کے حوالے بھی دیے کہ تمہاری تعداد تو 2 لاکھ سے اوپر ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں. کہتے ہیں نہیں جی ہم 35-40 لاکھ ہیں. اس نے یحییٰ بختیار نے کہا بتاؤ کیسے ہو 35-40 لاکھ؟ کہنے لگا جی بس ایک اندازہ ہے. اس نے کہا کہاں سے اندازہ ہے؟ کوئی جواب نہیں. اب اتنا فراڈ تم کرو گے اور قومی اسمبلی میں آ کر کھڑے ہوگے تو تمہیں کافر قرار دینا تو بہت چھوٹی بات ہے. مرزائیو، اگر میں بیٹھا ہوتا خدا کی قسم آج چناب نگر موجود نہ ہوتا پاکستان میں. یہ ہے جی اس کی بیک گراؤنڈ. پیر صاحب پتہ لگی؟ اب آپ پوچھیں. جی بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. مجھے یاد آیا ہمیں نذیر صاحب نے یہی بتایا تھا. اب مجھے یاد ہے میں پہلے پوچھ چکا تھا اس سوال کو، لیکن وہ ذہن سے نکل گیا تھا. مسئلہ بنا کہ انہوں نے پھر وہ کالج کے لڑکوں کو مارا، یہ مسئلہ بنا تھا. ہاں جی یہ وہ ٹریگر جی یہی تھا. جی 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 جی، سمجھ گیا. اور انہوں نے یہ دنگا فساد اس لیے کیے کیونکہ پیچھے بھٹو نے ان کے جو جرنیل تھے وغیرہ تھے ان کو سزائیں دی، اور جو بھی ہے یہ ہے نا بھائی. کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہیں. قادیانیوں نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا کیونکہ پیچھے بھٹو صاحب نے ان کے جرنیلوں کو سزائیں دی، اور جو بھی ہے یہ ان ہاں کے. انہوں نے نکال دیے تھے. اس نے ظفر چودھری کو بھی فائر کر دیا، نیول چیف بھی فائر کر دیا، اور ان کے کورٹ مارشل کا حکم دے دیا تھا اس نے. مطلب یہ ڈاکٹر صاحب قادیانی یہ بھی کیا چاہتے تھے؟ بھٹو کو اتار دیں گے؟ اور میں کہتا ہوں ضیاء الحق کو لانے والے قادیانی تھے، انہوں نے اتار دیا بھٹو کو. اچھا یہ آپ نے بات کی جنرل مشرف کی کہ یہ پیچھے سے بھی قادیانی نکلا، نہیں وہ تو اور ہے ہی قادیانی تھا جی. نکلا کیا؟ نکلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ تو پیدائشی قادیانی تھا.
नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था इस बात के बारे में ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जी। उसकी जी। बीवी जो है वो खुली कादियानी थी। फौज में ऐसे होता है पीर साहब, पाकिस्तान आर्मी में आप समझ अगर ये ना समझें कि पाकिस्तान आर्मी को इल्म नहीं, उन्हें साफ साफ इल्म है कौन कादियानी है कौन नहीं है। ये जब मिलिट्री में जाते हैं तो कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, और ये इसलिए कहते हैं, इनकी जमात इन्हें कहती है भाई हम तो मुसलमान हैं तो मुसलमान लिखो। उस वक्त जब ये रिक्रूट हुआ तो उस वक्त कोई नहीं था कि हम जो है मिर्जा कादियानी को काफिर मुर्ताद मानते हैं। लेकिन जब ये कानून आ भी गया कि हम मिर्जा कादियानी को काफिर मुर्ताद मानते हैं, उसके बावजूद मैं आपको आंखों देखा बात बताता हूँ। मैं 52 ब्रिगेड में एक दिन गया किसी वजह से, उनके हेडक्वार्टर्स में मैं बैठा तो मेरे सामने एक मेजर बैठा हुआ था आर्टिलरी का। मुझे उसकी बातों से शक लगा ये मुसलमान नहीं है। उसने कुरान पाक के या किसी चीज के बाद, मैंने कहा मेजर साहब आप कादियानी? और ना ना जी सर मैं कहाँ से कादियानी हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक, वैसे ही कहते हैं आपने क्यों पूछा? मैंने कहा नहीं नहीं वैसे ही मैंने पूछा। तो ब्रिगेड कमांडर मेरे साथ बैठा था, पठान था। कहता है कि सर ये तो मतलब हमारे मुसलमान हैं, आर्टिलरी कमांडर हैं हमारे इस सेक्टर के। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भूल गया। मैंने कहा होगा, मैंने उससे माजरत कर ली। मैंने कहा जनाब मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ कि मुझे। उसके बाद मैं किसी के साथ सरगोदा जा रहा था तो हमें दरमियान में हमने कहा थोड़ी देर इधर रुकते हैं और गोल बाजार से कुछ खा लेते हैं। मतलब मुझे नहीं पता था कि इनके यहाँ से खाना नहीं चाहिए, तो लेकिन हम गुजर रहे थे, सरगोदा जा रहे थे, तो उधर दरमियान में ये आया तो हम उधर रुक गए। अब मैं गोल बाजार में खड़ा हूँ और वहां पर ढाबे होते हैं, कोई इतनी अच्छी दुकानें नहीं है, और सामने से वही मेजर आ रहा है। मेरी तो आंखें फट गई। मैंने कहा उसका नाम बता देता हूं, उसका नाम मेजर महमूद था। मैंने कहा मेजर साहब गल सुनो, आपने मुझे याद है ना कहा था कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर में आप कादियानी नहीं है, ये कादियानियों का गढ़ है जहां आप कहते हैं जी आप भी तो यहीं खड़े हैं। मैंने कहा मेजर साहब मैं आपको बताऊं, मैं कसम उठा के बात बताता हूं कि मैं मिर्जा कादियानी पर लानत भेजता हूं और उसको झूठा समझता हूं। आप बताएं आप मिर्जा कादियानी लानती और झूठा है कि नहीं? कहते हैं नहीं जी मेरा तो खानदान ही यहां से ताल्लुक रखता है। मेरी आंखें फट गई। फिर मैंने ऐसे लोगों से ये सवाल पूछा और बार बार पूछा कि यार पाकिस्तान आर्मी में ये लोग वो कहते हैं जी, ये कह देते हैं कि हम नहीं है, हम कादियानियत है ही नहीं, हमारा ताल्लुक कादियानियत से नहीं है। और उसकी एक और मिसाल मैं आपको दे दूं। हमारा जो पिछला कमांडर था उसकी बीवी का नाम आयशा अमजद है, वो आयशा बाजवा कहलाई शादी के बाद। उसके बाप का नाम एजाज अमजद है। वो ये कहते हैं जी ये तो अमेरिका के सफीर का, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उसके बाप का नाम है जी एजाज अमजद। वो शख्स रेस कोर्स के साथ उसकी कोठी है जहां पर वो रहता है, जो फौज ने उसे जमीन दी थी वहां पर उसने बनाई। उसका मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल जब बोर्ड हो रहा था तो उसको सुपरसीड कर दिया। उसने एक फॉर्म भरा, लिख कर दिया कि मैंने कादियानियत छोड़ दी, मैं मुसलमान हो गया। उसने ना सिर्फ अपना फॉर्म भरा बल्कि उसने अपनी फैमिली का फॉर्म भरा कि हम मुसलमान हैं। उसको फिर प्रमोट कर दिया गया क्योंकि और बहुत सारे कादियानी सीनियर रैंक्स में हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उसने सेकंड अनाउंसमेंट, जब इन्फेंट्री का वो आदमी है, इन्फेंट्री में ऐसा होता है कि आप लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद फुल कर्नल नहीं बनते। अगर आपने प्रोग्रेस करनी हो तो आपको ब्रिगेडियर डायरेक्ट बनाए, एक रैंक मिस होता है फुल कर्नल का, आप डायरेक्ट ब्रिगेडियर बन जाते हैं। उसे इन्होंने ब्रिगेडियर प्रमोट कर दिया और वो अपने आप को मुसलमान मशहूर करता था, लेकिन था इतना कादियानी कि ईद वाले दिन भी कादियानियों में पाया जाता था, जुम्मे वाले दिन भी कादियानियों में पाया जाता था। तो आखिर उसको मेजर जनरल बना के उसको कहा कि भाई तुझे अब रिटायर करना पड़ेगा। तो उस वक्त 3 या 4 जर्नैल जो टॉप पर थे वो कादियानी या कादियानी छुपे कादियानी थे। जनरल हसन ने कहा कि नहीं जी इसको तो कोर कमांडर बनाओ। आखिरकार एक बड़ा जला हुआ हमारा कोर कमांडर था, उसने कहा अगर इसको तुमने कोर कमांडर बनाना है ना तो ए पीजे मेरी रिटायरमेंट, और मैं तुम्हें लेकर जाता हूं अदालत में और इसको बताओ। और उसने जनाब इसकी एक फाइल निकाल कर सामने मेज पर रख दी बोर्ड के। कहता है कि ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, 1 साल में इसने
27 मरतबा कादियानियों के साथ नमाज पढ़ी है और इतनी मरतबा ये वहां पर गया है। कहता है मुझे बताओ ये मुसलमान है या कादियानी है। फिर इसको मेजर जनरल पर रिटायर कर दिया गया, क्योंकि लोग खुलकर सामने आ गए थे। ये वो लोग, और जो जनरल बाजवा हमारा सिपहसालार था, ये वो लोग हैं जो अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो मतलब इतना दलेर था। आयशा का बाप एजाज अमजद कहता था नहीं जी। और पीर साहब, पाकिस्तान की तमाम मुश्किलों की वजह कादियानियत है और कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद सोचें, वो कादियानी जो अपना घर दुश्मन के हवाले करके आया है जानबूझकर, आप उस पर कैसे एतबार कर सकते हैं? उसका मजहब, उसके अकायद सब छोड़ दें, वो तो गद्दारे पाकिस्तान के ज़मरे में आते हैं ये लोग। और बड़े बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आम कादियानी भी इस सिचुएशन से वाकिफ नहीं है। ये वही कादियानी जो ऊपर से निज़ाम चला रहे हैं, या जो जिनको ये पुश करके ऊपर भेज देते हैं, फिर उनको पता लग जाता है तो बस जैसे जुराइम पेशा एक दूसरे के वफादार हैं, वो भी एक दूसरे के वफादार हैं। यही हालत अब्दुल सलाम की थी, यही हालत ज़फरुल्लाह चौधरी की थी। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? क्या हाल है? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जो पप्पू, एक मिनट है। जो सूरत हाल आपने बताई है, तो अभी भी तो फिर इसी तरह की सूरत हाल ही हो सकता है चल रही हो फौज में। बिल्कुल है जी। मैं कहना है इमरान खान दी मां दा नाना मिर्जे कादियानी की हर ग्रुप फोटो में उसके पीछे खड़ा है। कहे तो ग्रुप फोटो भेज दूं आपको। इसका और नाना जलंधर में अस्सलाम वालेकुम। जो ये पहला मैंने भी ना एक कादियानी दफा ये टेंपल सारी बनवाया कहानी गया, वो शौकत खानम के बाप अहमद हसन ने बनवाया था। और पहली मस्जिद भी जो कादियानियों की जो बनवाई थी, इसके नाना ने बनवाई थी इमरान खान के। नहीं नहीं, ये पता इमरान क्या? खान, हाँ इमरान खान के नाने ने बनवाई थी, लेकिन जो 313 में जिसका नाम शामिल है वो इमरान खान का नाना नहीं था, वो इमरान खान की मां का नाना गोहर अली है, मुंशी गोहर अली। 5वें लोग नंबर इस पे आता था रिश्ते को शायद ये। ना जानने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। जो जी जिसका जी। नाम 15वें नंबर पर मिर्जे कादियानी मुर्तद कज़्ज़ाब ने अपनी किताब में लिखा है, जाली 313 लोग जो उसने बनाए हुए हैं, वो मुंशी गोहर अली शौकत खानम का नाना था, इमरान खान का नाना नहीं है। इमरान खान का शायद परनाना लगता हो या जो भी लगता है, वो शौकत खानम का नाना है। इमरान खान का नाना अहमद हसन है, और उसने पहली मस्जिद या टेंपल बनवाया कादियानियों का जलंधर में। उसका नाम है जी बस्ती, जी। क्या कहते हैं उसको, मेरे पास उसका नाम मौजूद है जी। उस बस्ती का उसका एक खास नाम था, उसमें इसके खानदान के लोग रहते थे। ठीक हो गया। ऐसा ही है, अच्छा, बिल्कुल बात यह है ऐसा कि ही है। जो इमरान खान हो गया और उसकी फैमिली होगी या उसकी सिस्टर्स हैं, ये लोग मुसलमान हो चुके हैं। देखें जी, अब ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया है। ये नहीं, वो चूंकि जो लोग हैं। उनके उनके हस्बैंड हैं, वो तो मैं मतलब जानता हूँ कि वो ये जो है ना तबलीगी जमात वगैरह के साथ उनका ताल्लुक है, और वो कट्टर वो जो है ना उसी जमात के बंदे हैं। किसके हस्बैंड की नहीं बात? नहीं, हैदर ये हैदर भाई, ये सब इनकी बकवास है, एक सब सिस्टर झूठ का है। जो ये सब झूठ है। नहीं नहीं, झूठ नहीं यार। अब बात सुने आप। बात हकीकत पसंद ना करें, डॉक्टर साहब की बात सुने पहले। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आप बताएं। नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं। अगर कोई कादियानी मुझे आकर कहता है मैं मुसलमान हो गया हूं, मैंने कलमा पढ़ लिया है, तो मेरे पास उसको सिवाय उसकी बात मानने के कोई चारा नहीं है। अब कादियानियों को इसलिए हम काफिर कहते हैं कि उनका दिल तो हमारे सामने खुला पड़ा है। जो अपने आप को कादियानी कहता है वो उसी बात को मानता है जो मिर्जा मुर्तद लिख गया, तो वो तो काफिर है, उसका दिल चीरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बिल्कुल वो कादियानी जो मुझे आकर यह कहता है कि मैं भाई साहब मैंने कादियानियत पर लानत भेज दी, मैं मुसलमान हो गया, मैं कहता हूँ ठीक है, माशाअल्लाह, मुबारक हो। ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ? ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ नहीं पता वो लगता। तो बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम।
ये पब्लिक मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं कहता हूँ, अगर कोई कादियानी सवाल आपसे करना चाहता है तो कॉल डालें, तो हम बात करवा देते हैं इस मौजू पे। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई भी सवाल, मतलब सवाल। सबूत दूंगा मैं हर उस लफ्ज का जो मैंने बोला है। मेरा नहीं ख्याल का कादियानी आएगा ऊपर, बहरहाल अगर देखते हैं, अगर कोई नीचे आया तो उठा लेते हैं अपना। चलो जी, नज़ीर साहब आए हैं जी। नज़ीर साहब, आप कोई सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? जी जी, मेरा सवाल ये है कि जी जी अब ये जो पाकिस्तान की अब मौजूदा जो हालत है और आज जो इंकशाफात हुए हैं, हाँ तो जी। ये हमलावर हैं मुल्क पर, और ये मुल्क के गद्दार हैं या नहीं है? और शोर आप लोग अहमदियों पर डाल रहे हो। फिर सर इससे मुल्क पहले नहीं आप घेरा डालते हैं। इससे नहीं पहले भाई, एक सेकंड रुक जाइए सारे भाई। नज़ीर साहब, आप किसके साथ सवाल कर रहे हैं? पहले तो ये बताएं, आप डॉक्टर साहब को सवाल करना चाह रहे हैं? जी जी, अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे सारा हाँ जी। मामला। तो ये अब बताएं कि आप इस टाइम जो मुल्क अब जो सामने आई है बात कि मुल्क पर ही हमला किसने किया है? ये इलेक्शन में किसने, ये मुल्क को किसने तोड़ने की साजिश की है? कादियानियों ने की है? अहमदियों ने की है ये साजिश? कादियानियों ने। और ये जो आपके जो है ना जरदारी और शरीफ और सारे ये फजल रहमान, ये सारे नेक लोग हैं ना, कितने अच्छे लोग हैं, वो तो मुल्क की नहीं, खिदमत इनको करने नेकी वाले। का सर्टिफिकेट दिया, आपको गलती लगी है। नहीं, अब समझ आई है कि नहीं? अभी भी नहीं आई है समझ। मुल्क पर कौन जो है ना हमले कर रहे हैं, और इस मुल्क की जड़ों को कौन खोखला कर रहे हैं? कादियानी। उधर से आपकी तवज्जो हटकर जब भी ऐसे कोई हमला होता है ना, तो अहमदियों की तरफ रुख कर देते हैं। हाँ, अहमदी तो इस मुल्क को बनाने वाले और बचाने वाले, इस पर अपना खून इस मुल्क के लिए दिया है उन्होंने। ठीक है। आप यहाँ पर और आप नजीर साहब और रुक जाएं तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दें तो मैं आपकी हर बात मान लूंगा। आपके कमिश्नर ने जवाब दे दिया है, पिंडी के कमिश्नर ने आपके मुंह पर थप्पड़ मार दिया है। एक सेकंड जी, एक सेकंड। अपना है अहमद अली, उसको फांसी पे लटकाओ आप सबको, जो गद्दार साथ हैं उसके साथ मिलकर सबको फांसी पे लटकाओ, अब पता चलेगा। यार मेरा इतना क्वेश्चन है, मुझे नीचे ना तरीका बड़ी मुश्किल से आपने उठाया है। जज़ाकल्लाह। ओ फेक आईडी है, फेक। सबर जरा देखिए नजीर साहब, आपको आज मुनाजरा तारीख का करने पता के लिए चला, कमिश्नर की मुंह से पता मेरी चला आवाज तारीख आ रही आपकी है? क्या है। मेरी आवाज आ रही है भाई? जी जी बिल्कुल आ रही है। नजीर साहब, जी अमर भाई, आ रही है, आ रही करने है। के लिए नहीं कहा गया, आपको कहा गया अगर कोई सवाल करना है तो कर लें, गाली देनी है तो हमें दे लें। डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, उस पर अगर कोई सवाल है तो कर लें। एक बात मैं भी ऐड करना चाहता हूँ छोटी सी, आप उसको सुन के फैसला खुद कर लीजिएगा कि ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना कि फतवा तो लगता है जाहिर पर, अगर कोई बंदा ज़ाहिरी तौर पर आके कह देता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कादियानियत पर लानत भेजता हूँ, हम कैसे उस पर फतवा दे सकते हैं? हम तो कहेंगे ठीक है, आप मुसलमान हो गए हैं, छोड़ दिया। जिस तरह जनरल बाजवा ने कहा था कि मैं, हालांकि प्रोफेसर साजिद मीर ने उस वक्त बयान दिया था, फिर बाद में एजेंसियों ने आके इनको क्लियरेंस दी कि नहीं ये जनरल बाजवा ने तो वो जब ये रिक्रूटिंग कर रहा है उस वक्त का मामला है, उसमें उसके बाद छोड़ दिया था। बहरहाल, लेकिन ये लोग छुपाते हैं, अपनी असलियत को छुपाते हैं। ये इनका एक तारीखी वाक़या मैं छोटा सा बयान करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग ज़ाहिर पर आके नहीं बताते कि हम कादियानी हैं। आपको ज़ाहिरन यही कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, हमने तो कादियानी छोड़ दी है, हम तो लानत भेजते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत ये है कि ये झूठे लोग होते हैं। एक बंदा था हकीम सईद उसका नाम था, तो वो मौलाना बटालवी के साथ चुनिया वाली मस्जिद में आके मुनाजरे किया करता था, बहसें किया करता था हयात व वफ़ात मसीह के मौजू पर। मौलाना बटालवी कहते थे सीधी बात, नजर नहीं आ रहा। ओ अहमद नहीं पढ़ सकता उर्दू भारत यार, की कर दे पे हो किन्नी को बारी दसी है। मॉडरेशन क्यों खत्म कर सकते हैं? थल्ले हां बड़ाई साहब नु क्यों मॉडरेटर तो हटाया है अहमद अली? दिमाग सही है तेरा, तो पढ़ थल्ले ठीक है तेरा, ये तो ठीक है मेरा ख्याल है। बंद कर दे फ्रॉड के। कौन है अली? हो सकता अली फोन धर के पਰਾਂ गया होਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ पे करना तो बड़ा रश वाला एरिया ਤੇ ਮੈਂ नहीं थल्ले सेटिंग की आईडी तो बकवास करी आਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ और ये बस मिर्जाइत है कुछ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, बहुत अच्छी वो गुफ्तगू चल बंदा- रही थी, सामने का पंगा हुआ। वो बंदा जो हकीम सईद नाम का बंदा है, वो शेख बटालवी के साथ लाहौर में चुनिया वाली मस्जिद में आके हयात व वफ़ात मसीह के मौजू पर बहसें करता है। शेख बटालवी उसको कहते
तू सच सच बता, तू कादियानी हो गया है और तू मिर्जाई हो गया, बात सीधी कर मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो कलमा पढ़ता हूं, मैं तो लानत भेजता हूं मिर्जाई। मानता नहीं था। यही वो बंदा था